Hello everyone. Recently, 11th Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi was held. And in this meeting, there are a lot of announcement that was happened in this particular meeting. Now, many students know that Quad means India, United States, Japan, and Australia. But the important question is, what is a Quad actually trying to achieve? Another important question is it a military alliance like NATO? So we are going to answer all these questions. But before that, there's a little introduction about this platform. If you are preparing for UPSC civil services or any state civil services, then you are watching the right lecture and this is the right platform for you. Why this is the right platform? Because here you will get each and every resources that is required for your smooth and effective preparation, completely free, completely without any cost, without any charge, without any fee. So that's why it is important. That's why it is right for you. And it works on the principle that your economic obstacles and your financial hurdles should not be a problem for your education accessibility. तो अगर आपका सपना है IAS IPS बनने का तो आप बनिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको हेल्प करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है. अपनी कैपेसिटी से मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा. दूसरी चीज़ कि अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगे, समझ में आए, तो आप लाइक कीजिए. किसी तरीके का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी तक इसे शेयर करें ताकि उनका कुछ हेल्प हो जाए हमारे छोटे से इस फ्री इनिशिएटिव से. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सबसे पहले क्वाड के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज क्वाड. क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग. And even if you open your world map, then you can see this type of quadrilateral shape that was formed by four countries. That is India. Here you will get Japan, Australia, and United States. और ये जो रीजन कैप्चर है इसके बीच में, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन. तो बेसिकली इट इज अ ग्रुपिंग विच इन्वॉल्व्स इंडिया, एशिया, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. But don't make the common mistake of thinking that Quad is a formal military alliance. It is an informal, strategic grouping with no treaty obligations or mutual defense commitments. It operates purely on issue-based coordination. So there is no commitment, there is no obligation. And its broad objective is to maintain free, open, stable, inclusive, prosperous, and resilient Indo-Pacific region on the basis of international law, that is यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. तो इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इसे हम इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी कहते हैं. और इस इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को मेंटेन करना हमारा मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर कहीं पे भी. एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए. ये नहीं कि जिस कंट्री के मर्जी में जो आए वो करना शुरू कर दे. ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ऐसे तो फिर वर्ल्ड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा. और इंडिया का ये इंटरेस्ट है कि इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना. तो ये तो आपको समझ में आया कि क्वाड क्या है, जिसमें 4 मेंबर हैं. विजन सिंपल है, इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करना. किस टाइप का ग्रुप है ये? तो ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जहाँ पे कोई ट्रीटी का ऑब्लिगेशंस नहीं है और किसी भी तरीके से कोई डिफेंस कमिटमेंट्स नहीं है. तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें. दूसरा, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बना ये? 2004 में आपको पता होगा कि सुनामी को लेकर के काफ़ी डेवास्टेशन हो चुका था.
And after the devastating Indian Ocean tsunami, India, United States, Japan, and Australia coordinated humanitarian assistance and disaster relief in this region. And this created the initial basis for cooperation. And at that time, there was no Quad. In 2007, a strategic dialogue that was proposed by Japanese Prime Minister Shinzo Abe. But after 2007, it becomes completely dormant until 2017. And in 2017, there was a revival of Quad and revived due to growing concerns over regional security and rule based order because China started dominating in the Indo Pacific region. So, to counter China, it becomes important to revive Quad. ठीक है, तो ये इसका बेसिक सिंपल इवोल्यूशन है. तो फिर क्या क्वाड जो है रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए क्या एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है? तो हम इसे सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे भी तो इट इज़ मोर देन अ सिक्योरिटी ग्रुपिंग. तो सिक्योरिटी ग्रुप तो है ही, लेकिन इट इज़ मोर देन अ सिक्योरिटी ग्रुपिंग विच इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज ऑफ कॉपरेशन. फर्स्ट इज क्लाइमेट एंड हेल्थ, राइट. Its cooperative areas is climate change, critical and emerging technologies, साइबर सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में. तो इन तीन चीज़ों में, और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी कुछ अनाउंसमेंट है जिसको हम लोग देखेंगे. तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि क्लाइमेट और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में कहीं ना कहीं ये अपने आप को इंगेज रखने की बात करता है. कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ये सब क्रिटिकल एनर्जी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने की बात करते हैं और इसमें इंगेज रखने की बात करते हैं अपने आप को. साइबर सिक्योरिटी को भी कॉपरेट करना है, इनको 6G कम्युनिकेशन में कॉपरेट करना है, सिक्योर सप्लाई चेन्स में कॉपरेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि पोर्ट्स. और इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कैसे जो भी अनाउंसमेंट हुआ, जो मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में, उस मीटिंग में किस तरीके से इन सारे मुद्दों पे बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई. तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा अनाउंसमेंट हुआ है. तो चलिए हम अनाउंसमेंट में आ जाते हैं. अनाउंसमेंट सबसे पहले ये हुआ, अंडर सी केबल बिछाएंगे. इन दिस मीटिंग क्वाड एम्स टू कनेक्ट Pacific Island Forum countries, including Fiji, by 2026, boosting digital connectivity, secure data flow, and regional integration. आपको पता है कि ये अंडर सी केबल बिछाने का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी को मेंटेन करना है. और इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर अंडर सी केबल से बिछेगा तो आपका सेफ एंड सिक्योर डाटा एक्सेस आप कर सकते हैं. आप साइबर अटैक से बच सकते हैं क्योंकि इसमें आपका कंप्लीटली आप ही के ग्रुपिंग का डाटा होगा. फिर पोर्ट ऑफ द फ्यूचर, जैसे कि इसी अनाउंसमेंट में बात कही गई कि एडवांसिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिजी एंड आइलैंड नेशंस. तो जितने भी आइलैंड नेशंस हैं वहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई. और कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इंडिया का जो महासागर मिशन है ना, उस महासागर मिशन के ऊपर काम करने की बात कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ये एम है, इसके सिनर्जी में ये पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर का अनाउंसमेंट हुआ. तो अब इस बात को समझिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में पहला अनाउंसमेंट. दूसरा अनाउंसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जो कि पोर्ट्स बनाने की बात की गई. और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलियंस कोलैबोरेशन, इसमें भी कुछ अनाउंसमेंट किया गया जहाँ पे एक पूरे तरीके से यूनिफाइड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क बनाने की बात की गई, जहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात हुई कि अगर इंडो पैसिफिक में सारे लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सारे कंट्रीज, तो सारे कंट्रीज को
जितने भी 4 कंट्रीज हैं वो सारे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा एक दूसरे से, और इससे क्या होगा कि हमारा सर्वेलियंस मैकेनिज्म काफ़ी कैपेबल होगा, है ना, काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी रोबस्ट होगा। तो इजीली हम अपने एजेंडा, जो हमारा एम है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करें इंडियन ओशियन में, इंडिया का, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे थ्रेट है, जैसे कि पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी एट सी, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये सब भी बहुत होता है हमारे ओशियन में। स्मगलिंग हो रहा है, अनलॉफुल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और अगर हम इस सर्वेलियंस मैकेनिज्म को मेंटेन करके उसके साथ इंगेज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को हम मेंटेन तो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम रोक तो सकते हैं। तो मैरीटाइम सर्वेलियंस को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। आपको पता है एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, क्रिटिकल मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। हम चाइना पे डिपेंडेंट थे और चाइना ने बैन कर दिया, चाइना एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट थी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, अब तो वो वल्नरेबल हो चुकी है, अब तो वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जब आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, अगर क्वाड मेंबर आपस में एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स मेंटेन करने की बात करें, इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे इंडिया का भी फायदा है कि इंडिया मल्टीपल कंट्रीज के साथ ही एनर्जी मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी सिक्योर रखने के लिए अपने आप को इंगेज कर सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स हम ऑस्ट्रेलिया से भी ले सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हम जापान से भी ले सकते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी ले सकते हैं। तो ये क्रिटिकल मिनरल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम चाइना पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज एसेंशियल फॉर मेक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स एंड एडवांस्ड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। और इसलिए ये क्रिटिकल मिनरल इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वाड के मेंबर आपस में एनर्जी शेयर करें और क्रिटिकल मिनरल शेयर करें तो इंडिया का फ़ायदा है और सारी कंट्रीज़ का फ़ायदा है इसमें। तो सर ये अनाउंसमेंट हुआ कि हम एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखेंगे और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के हम लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। उसके साथ कुछ और आउटकम्स और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस को लेकर के अनाउंसमेंट हुए, जैसे कि क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, कोस्ट गार्ड लेड कोऑपरेटिव मिशन डिजाइंड टू मॉनिटर illegal maritime activities and improve interoperability, and the next mission will be hosted by India। तो ये ऑब्जर्वर मिशन, इस पे बात किया गया कि कोस्ट गार्ड लेड कोऑपरेटिव मिशन होगा जो मॉनिटर करेगा इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को इंडो पैसिफिक रीजन में। तो कहीं ना कहीं हमारा सिक्योरिटी मेंटेन तो हो रहा है। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन 6th जनरेशन कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे से ऑन फ्यूचर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाएंगे एमॉन्ग मेंबर स्टेट्स। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी हम शेयर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन करने की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट in this recent meeting. Now, the real question is why Quad matters for India's strategic interest. First strategic interest is supply chain resilience. अगर हम क्वाड के साथ इन्वॉल्व हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड के मेंबर दूसरे मेंबर जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के हम अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। मल्टीपल कंट्रीज के साथ हम क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के इंगेज हैं। इंडियन ओशियन का सिक्योरिटी, अगर आप सर्विलियंस करने की बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो आपकी टेक्नोलॉजी से हमें भी तो फ़ायदा है। इंडियन ओशियन सिक्योरिटी, पैसिफिक इंगेजमेंट, आप पोर्ट्स बनाने की बात करते हैं,
आइलैंड फोरम नेशंस पे। तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो इनिशिएटिव है कि हम पैसिफिक इंगेजमेंट करें और महासागर मिशन जो है उसमें भी तो हेल्पफुल है। डिजिटल कनेक्टिविटी, अगर आप सी केबल बिछाएंगे और हम क्वाड के मेंबर हैं तो क्वाड के मेंबर को आप उस डिजिटल कनेक्टिविटी से लाभ देंगे, तो कहीं ना कहीं उससे हमारा भी तो फायदा है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और हेल्थ, क्विक डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन एंड रीजनल हेल्थ सिक्योरिटी, तो इन सब चीज़ों में क्वाड अगर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दिया है तो ये सब अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फ़ायदेमंद तो है सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है हम क्वाड के मेंबर हैं, तो क्या इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है सर। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, क्वाड मेंबर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। क्वाड एक अलायंस नहीं है ना। इंडिया पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन क्वाड while preserving its traditional strategic autonomy, independent foreign policy and multi-alignment strategy। तो इंडिया को किसी ने रोका तो नहीं है दूसरे कंट्री से अलाइनमेंट करने से या फिर अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट तरीके से बनाने में, है ना। हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना, हमारा इंटरेस्ट अगर दूसरे कंट्रीज दूसरे क्वाड के मेंबर के साथ मैच करेगा हम काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, नहीं मैच करेगा हम नहीं करेंगे वहां पे, है ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया का मेंटेन है। कुछ चैलेंजेस है क्वाड को लेकर के, जैसे कि डाइवर्जेंट प्रियोरिटीज। अब सीधी सी बात है ना, यूएस का प्रियोरिटी है कि वो चाइना को काउंटर करे, इंडिया का प्रियोरिटी है कि रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन हो इंडो पैसिफिक में, इंडिया का प्रियोरिटी है कि सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन हो, इंडिया का प्रियोरिटी है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखे। तो हमारा तो ये सब मोटो है, और यूएसए का मोटो है कि चाइना को हम काउंटर करें, चाइना से हम कम्पीट करें। तो कहीं ना कहीं हमारा एक डाइवर्ज प्रियोरिटीज है। ऑकुस फैक्टर, द क्रिएशन ऑफ ऑकुस इंट्रोड्यूसेस पोटेंशियल ओवरलैप्स एंड डाइवर्स स्ट्रेटेजिक अटेंशन एंड रिसोर्सेस। आपने ऑकुस बनाया तो इसमें इंडिया तो नहीं है, लेकिन इसका भी सिंपल अगर देखेंगे तो विजन जो है कहीं ना कहीं क्वाड की तरह ही इसका भी विजन है, तो विजन का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो फिर आप जब क्वाड में, यूएसए जब क्वाड में है तो फिर आपको ऑकुस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऑफ एजेंडा तो है, एंड इट कैन लीड टू लॉस ऑफ रिसोर्सेस, अटेंशन। आप क्वाड में हैं तो फिर अटेंशन लोगों का, आपके मेंबर्स का ऑकुस में हो सकता है ना। इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट, क्वाड के साथ अपनी एक चैलेंजेस है कि यहाँ पे